The first explanation for Hund's rule comes from, that is, maximum multiplicity idea for degenerated orbitals comes from maximum separation or lowest potential energy due to large separation, or if electrons are going to be spaced as far as possible, uh, the repulsion between them can be minimized and potential energy of the system, the repulsion can be minimized and thus the potential energy of the system can be minimized too. Okay. So spatial separation of electrons, space में इलेक्ट्रॉन का separation in order to achieve lower potential energy is a reason for single filling up of the electrons in degenerated orbitals. बात समझ में आ रही है? So we can write this as larger separation between lower lower will be the potential energy. This ensures that electrons must be spaced as far as possible as far as possible in order to maintain order to minimize 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 potential energy. स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Thus electrons
prefer to fill singly first among degenerated orbitals and then their pairing takes place. ठीक है. और the reason for, I mean, this is a separation. The idea of separation is one thing. There is another idea. ठीक है. The other idea is related to, I mean, it's the explanation of same point. ठीक है. दूसरा चीज ये होता है symmetricity. Symmetricity. ठीक है. More symmetric a system is, more symmetric a system is, lower will be its potential energy. ठीक है. So the single filling up takes place in order to develop symmetricity, symmetrical nature. That is also, I mean, this is also postulated as a favorable reason for single filling up of degenerated orbital. ठीक है. In order to develop symmetric distribution, in order to maintain and build up on symmetric distribution of electrons in an atom, single filling up of degenerated orbitals takes place. ठीक है. सी एक ही ऑर्बिटल पे दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑब्वियसली अनसिमेट्रिक होएगा compared to the scenario where the electrons are going into two different orbitals. Right now, are we getting this point? Hello? Hello? Am I audible? Yes, sir. Audible हूँ मैं? Yes, sir. Sir. Okay. ये point समझ में आया? What I'm trying to say? For example, इसमें अगर मैं एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रॉन्स को डाल देता हूँ तो the system will definitely become less symmetric, right? वहीं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ डालता हूँ और दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिटल में यहाँ पर डालता हूँ पर दो पॉसिबिलिटी है. एक तो ये कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डाल दूं और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दूसरे ऑर्बिटल में मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डालूं. ठीक है. फिर मैं भी यहाँ पे ऐसे डालूं. ठीक है.
ना यहाँ पे अगर मैं प्लेस करता हूँ, द सिस्टम विल बिकम मोर अनसिमेट्रिक, ठीक है, कंपेयर टू मी पुटिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल, ठीक है। तो चूंकि सिमेट्रिसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के डालने से बढ़ रही है, देयरफॉर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं सेम ऑर्बिटल के अंदर में, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिसिटी। दिस सिस्टम अगर ये इसी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इस ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं रहता है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल और लेस सिमेट्रिक कंपेयर टू द अदर डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है। ये बात समझ में आ रही है ना? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। यस सर। क्लियर है ना पूरा? Yes. Okay, fine. So you can actually take this example, more stable, less stable, ठीक है। और इसी चीज को एक्चुअली हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ आई हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन p orbitals, this arrangement is going to be more stable, ठीक है, this is more stable compared to ये वाले अरेंजमेंट को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर एक दो चीजें और भी छोटी छोटी बता ही देता हूँ। दिस इज लेस स्टेबल, ठीक है। देखो ये वाला फिलिंग अब तो सही है, और इसके बदले मान लो ऐसे अगर फिल्ड अप होता तो ये भी सही होता। यहाँ पर एक है ऊपर और ये वाला ब्लैंक है और ये वाला फिर से ऊपर है, तो इस तरह का भी दो इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो ये वाला अरेंजमेंट भी हमारा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नॉट ओनली दिस, जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही रहे, इट कैन ऑल्सो बी टुवर्ड्स लोअर साइड, बट दोनों लोअर लोअर ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक अपर एक लोअर हो जाए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट ओनली दिस इज ऑल्सो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये वाला भी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, इसके अलावा ये वाला भी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, राइट। This is also going to be a correct distribution, ठीक है। Are we getting these points? ये सही क्यों है? क्योंकि यस सर। ये तीनों ऑर्बिटल्स डीजेनरेटेड है, सेम एनर्जी के है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आए इसमें आए इसमें आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है? स्पिन से, ठीक है। ये दोनों का स्पिन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इट शुड नॉट हैपन कि एक डाउनवर्ड स्पिन स्पिन में है और दूसरा अपवर्ड स्पिन में है, तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके बदले अगर हम लोग ऐसे बना देते हैं, एक अप स्पिन में है एक डाउन स्पिन में है, ऐसे, दिस विल बिकम रॉन्ग, ठीक है। ये तो रॉन्ग है ही, ये भी नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा ये किसी भी ऑर्डर में, लाइक अगर एक यहाँ है, ये रॉन्ग होएगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन नहीं चलेगा, या तो दोनों अप स्पिन हो दोनों डाउन स्पिन हो, उसका कोई भी अरेंजमेंट होगा, it will represent a right configuration. I hope we are getting this point. Yes, sir. There is no Yes, issue sir. in this, ठीक है ना? Fine. The last one is yeah. The second point which favors this Hund's rule of maximum multiplicity is there is something called as exchange energy, ठीक है। ये exchange energy concept जो होता है,
that comes from the fact that अगर इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल सेम एनर्जी पोजीशन ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ठीक है, तो इट हैज बीन नोटिस दैट दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशंस, ठीक है, और चेंजिंग देयर पोजीशंस का मतलब एक्सचेंजिंग देयर पोजीशंस। अगर चार पार्टिकल हैं, चारों इक्वल एनर्जी लेवल्स पे हैं, ठीक है, तो चारों पार्टिकल आपस में अपने पोजीशन को शिफ्ट करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को थोड़ी सी? They will keep changing their position among themselves, ठीक है। इस प्रोसेस में दे एक्चुअली रिलीज सम एनर्जी। इस पोजीशन शिफ्टिंग में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर which is having same energy, they tend to lose their potential energy, ठीक है, and losing this potential energy leads to stabilization of such systems या such particles। और अब ये होता क्यों है, इसके पीछे लाइक बहुत क्लियर, मतलब क्लियर रीजंस अपने लेवल पर थोड़ा मुश्किल है, इसको फॉर ग्रांटेड स्टेटमेंट की तरह आपको लेना होगा सेम एनर्जी लेवल पे, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन जो है हाँ, एक चीज मैं बता सकता हूँ आप लोग को, लाइक थोड़ा सा लंबा एक्सरसाइज है, बट वी कैन डू दैट इन ऑर्डर टू रियलाइज दिस। इट दैट इज अगेन नॉट अ फिजिकल थिंग विच हैपेंस, वो भी एक सब एटॉमिक सिस्टम का ही पार्ट है, जिसको कि मैं आप लोगों को बॉन्डिंग के टाइम पर पढ़ाऊंगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज गोइंग टू कम, रेजोनेंस, ठीक है। और रेजोनेंस का जो बेसिस होता है लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसको एक्चुअली इसके थ्रू हम एक्सप्लेन, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर लॉजिक्स यूज होते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट ओवर हियर, एंड फिर जब वहां पे एक्सप्लेन करूंगा तो आई विल जस्ट कोरिलेट दैट, ठीक है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट फॉर यू गाइस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इक्वल एनर्जी सिस्टम में ये चार पोजीशंस हैं या पांच पोजीशंस हैं जो कि इक्वल एनर्जी वाले हैं, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर। अच्छा, जितने ऑक्यूपाइड होंगे यही एक्सचेंज हो सकते हैं, जो खाली रहेगा वो एक्सचेंज नहीं, वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। खाली पोजीशंस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली भरे हुए पोजीशंस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसी वजह से ऐसा मैंने बनाया है। आई कैन some example like this। तो वो चीजें मैं आप लोग को लिखवाऊंगा भी, डोंट वरी। सो कौन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा, अभी के लिए मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि वाई एक्सचेंज इज फेवरिंग, वाई एक्सचेंज इज फेवरिंग और वाई एक्सचेंज एनर्जी इज फेवरिंग इन लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और रेजोनेंस जो प्रोसेस होता है उसके अंदर में होता ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स न्यूक्लियस, दो फिक्स न्यूक्लियस के इंटरेक्शन में तो हमेशा रहता है जब वो बॉन्डिंग कर रहा होता है, ठीक है। जब भी बॉन्डिंग कर रहा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इन दो न्यूक्लियस के बीच में प्लेस्ड होता है, एंड ये दोनों के
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में होता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि कोई एक तीसरा न्यूक्लियस आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तीसरे न्यूक्लियस के भी इन्फ्लुएंस में आ जाता है या आने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो इट ऑलवेज ट्राई टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस थर्ड न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज आल्सो। इससे होता क्या है कि potential energy of the system gets minimized. Potential of this energy of the system gets minimized. कैसे और क्यों? तो एक्चुअली हम लोग नहीं स्लो नहीं, बढ़ा दीजिए, 5 हाँ। सो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिनिमाइज कैसे होती है? तो यू कैन जस्ट सी, मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर जो भी चार्ज है, ये जेडी है, ये जेडी है, ये ई है, यहाँ पर भी जेडी हम मान लेते हैं। ये सेपरेशन r/2 r है, ठीक है। तो ये वाला सेपरेशन भी r रहेगा, लगभग मिड में मान रहे हैं और नंबर्स से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीसरा न्यूक्लियस आ गया, r1 ले लेते हैं। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या था इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जब ये था? तो द पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी वाज Ze into E by 4 pi epsilon naught R into 2 with minus, ठीक है। दिस वाज पोटेंशियल एनर्जी 1, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी एंड इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 2 क्या हो जाएगा? इट विल इंक्लूड दिस वैल्यू Ze into E divided by 4 pi epsilon naught into R, और साथ में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी ऐड हो जाएगा, एंड इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी अगेन Ze into E by 4 pi epsilon naught into R1, ठीक है। एक निगेटिव नंबर में एक और निगेटिव नंबर को अगर हमने ऐड कर दिया तो निगेटिव नंबर की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? इट विल eventually decrease, that implies घटेगी। Pe2 will become smaller than Pe1, and this is a favorable condition for us. Favorable condition मतलब potential energy minimize हो रहा है, and that is why it is becoming helpful, ठीक है। अब ये होता ऐसा है कि ऐसे सिचुएशन को गेन करने के लिए इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा मूव भी करना पड़ता है, तो इट हैप्पीली मूव्स, ठीक है। हैप्पीली मूव्स मतलब एक एटम, दो एटम, तीन एटम, तो पहले ये दो एटम के बीच में बॉन्डेड रहता है, यहाँ से ये मूव करके दूसरे और तीसरे एटम के बीच में भी आ जाता है, अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर लेता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। बात समझ में आ रही है? द ओनली थिंग इज वहां पर भी ये कंस्ट्रेंट होता है कि द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब ये इन दो के बीच की जो कंडीशंस है और इन दोनों के बीच की जो कंडीशंस है, दैट मस्ट नॉट बी वेरी डिफरेंट, ठीक है। वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी के टर्म्स में इन दोनों का सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसका इन दोनों के बीच के बॉन्डिंग का सिचुएशन इन दोनों के बीच के बॉन्डिंग के सिचुएशन के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो फिर दिस थिंग विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। दिस एक्सचेंज विल नॉट टेक, दिस एक्सचेंज मतलब ये रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ, द रेजोनेंस विल, द इफेक्टिव रेजोनेंस विल नॉट टेक प्लेस। यहाँ पर ऑर्बिटल लेवल में ये होता है कि नो मैटर व्हाट, the energy of orbitals are always going to be same till we have applied the external electric or magnetic field. Am I making sense? तो क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स डीजेनरेटेड होते हैं, वही उनका नेचर होता है, so these all are equal energy positions
और इक्वल एनर्जी पोजीशंस में अगर मैं अलग अलग जगह पे मूव करता हूँ, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू, जैसे यहाँ पर हेल्पफुल हो रहा है कमिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मोर न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पर it is true that it is not coming under influence of more nucleus, ठीक है, but it is sure that सेम एनर्जी वैल्यू पर के पोजीशंस पे आप ज्यादा जगह पे अगर स्प्रेड करते हो, सेम एनर्जी वैल्यू पोजीशंस पे या सेम एनर्जी लेवल पे आप ज्यादा जगह पे स्प्रेड करते हो, ज्यादा जगह पे मूव करते हो, तो यू आर एक्चुअली इनहांसिंग द सिमेट्रिसिटी। डोंट यू थिंक सो? इस चीज को थोड़ा सा आप लोग इनहांसिंग सिमेट्रिसिटी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ पोटेंशियल एनर्जी, देखो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ना एक्सचेंज एनर्जी का, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग लाइक इट हैज मोर टू डू विथ क्वांटम नेचर, ठीक है। अब इसको क्लासिकल नेचर में एक्सप्लेन कर पाना वो तक काफी मुश्किल है, बट आई थिंक ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइज मतलब जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट होएगा, ये इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट होएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, उतना इसकी एनर्जी कम होती है। सिमिलर तरीके से ये जितना ज्यादा स्प्रेड आउट, यानी जितना ज्यादा एक दूसरे के पोजीशंस के साथ एक्सचेंज कर सकता है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को ये प्रोवाइड करेगा। एंड दिस बिकम्स, एंड द रीजन फॉर दिस इज सेम स्पिन में रहने पे दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर एंड देयरफॉर दे ट्राई टू रिमेन एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। सिंगली ऑक्यूपाइड में रहने के पीछे रीजन क्या है? सेम स्पिन के हैं, सेम स्पिन के हैं, तो सिमिलर डायरेक्शन में करंट फ्लो रहेगा, और सिमिलर डायरेक्शन में करंट फ्लो रहेगा तो उनके बीच में रिपल्सन रहेगा, और रिपल्सन रहेगा तो दे आर गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड उस अवे फ्रॉम ईच अदर की वजह से सिंगल ऑक्यूपेंसी की वजह से एक्सचेंज एनर्जी, एंड दैट फर्दर एड्स टू स्टेबिलिटी, ठीक है। लेट अस नाउ talk purely about exchange energy. अच्छा, ये सिंगली के साथ ही ट्रू नहीं है, डबली फील्ड वाले भी करते हैं, मैं बताता हूँ।
नाउ द पॉइंट इज मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा था कि मान लो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स सिंगल सिंगल भरे हुए हैं, ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो टोटल नंबर ऑफ exchanges which are possible in this case, total exchanges are, जो भरे हुए हैं वो वही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे एक्सचेंज में, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर या फिर यहाँ पर दो जगह पे आ सकता है, ठीक है, यानी ये यहाँ पर आएगा और इसका वाला यहाँ पर आएगा, तो एक एक्सचेंज हुआ। ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, तो दिस विल बी द सेकेंड एक्सचेंज। और फिर ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, सो द टोटल एक्सचेंजेस पॉसिबल विल बी 3। 3 भरे हुए हैं तो 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं। चौथा को फिर से भर दिया हमने, 4 भर जाएंगे, तो द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल विल इंक्रीज, ठीक है। 1 2 3 4। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एक्सचेंजेस आर पॉसिबल व्हेन, जैसे मैंने ये काउंट किया वैसे आप काउंट करके बता सकते हो, 4 जब भरे रहेंगे तो टोटल एक्सचेंज कितने होंगे? हेलो। सर 4। कैसे तो ये वाला एक बार इसके साथ एक्सचेंज करेगा, एक बार इसके साथ एक्सचेंज करेगा, एक बार इसके साथ एक्सचेंज करेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो 3 एक्सचेंज इससे मिला, फिर उसके बाद ये वाला एक्सचेंज करेगा, तो ये वाला एक्सचेंज करेगा तो ये इसके साथ करेगा, इसके साथ तो ऑलरेडी कर चुका है ये यहाँ पर ऊपर में, तो नया एक्सचेंज कौन सा होगा? ये सर वाला 3 एक्सचेंज। करेगा। हाँ, 2 एक्सचेंज यहाँ पर मिलेगा तो 3 2 5 हो गया, और फिर उसके बाद एक नया एक्सचेंज ये होगा कि ये वाला इसके साथ एक्सचेंज कर ले, so there are going to be total 6 exchanges, ठीक है। what if I fill all 5? how many exchanges will be possible? सर 10। 10, perfect। बाकी लोगों को समझ में आया 10 कैसे होगा? Yes, sir. ठीक है, so total exchanges are going to be 10। very good। uh, okay,
अच्छा, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन अगर मैंने डाल दिया, छठा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो कितना एक्सचेंजेस पॉसिबल रहेगा? विल द नंबर ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज? हेलो? नहीं, 14 Yes, sir. 14 कैसे? देखो, इस सर वो जो डाउन स्पिन में वो हाँ, बाकी के 4 से नहीं होगा पेयर। कैसे होएगा? ये एक्सचेंज करने के लिए, वही पॉइंट है कि एक्सचेंज करने के लिए दूसरी जगह पे सेम एनर्जी, सेम कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। खाली जगह के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकता, ये इसके साथ और डिफरेंट स्पिन वालों के साथ एक्सचेंज नहीं पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसके पास एक्सचेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। द टोटल एक्सचेंज एनर्जी या टोटल एक्सचेंजेस पॉसिबल इन दिस केस विल आल्सो बी हाउ मच? 10. 10 ओनली। ठीक है, फर्दर अगर दो डाल दिया मैंने, तो दो पेयरिंग अप कर दी, तो अब कितने एक्सचेंज एनर्जी बनेंगे? 12. 12 की 11? Yes, 11. टोटल एक्सचेंजेस विल बी 11। 11 सर। ठीक है, एक और ऐड किया तो 1 14. 2 3 4 5। क्या तुम ना रहे हो अभी? 13, sir. हाँ, 13, sir. 13। टोटल एक्सचेंजेस आर गोइंग टू बी 13, इक्वल टू 13। ठीक है, इसमें एक और ऐड कर दिया हमने, तो हाउ मच विल? 17. 16. 16। 16। टोटल एक्सचेंजेस विल बी 16 एंड सबको फिलअप कर दिया, तो टोटल एक्सचेंजेस विल बी 20. 20। ठीक है, अब देखो होता ये है कि यहाँ पर द एक्सचेंज डिफरेंस increases quite fast between these two levels। इस लेवल और इस लेवल के बीच में एक्सचेंज काउंट जो है वो बहुत फास्ट बिल्ड करता है। ठीक है, अच्छा, अभी थोड़ी देर में हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली देखना चालू करेंगे, तो डीजेनरेसी लेवल में एक्चुअली 3D या डी वाले ऑर्बिटल के साथ अगला वाला एस ऑर्बिटल जो होता है ना, वो भी पार्टिसिपेट करता है।
ठीक है, उसकी भी एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंट इससे नहीं होती है। एक सेकेंड रुक जाओ तो। एक सेकेंड बच्चों। वेरी गुड। सो देखो, मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर इस तरह का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ये कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक होकर के ये इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, सेम स्पिन में, तो दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड 5 एक्स्ट्रा एक्सचेंजेस टू अस। ठीक है, और 5 एक्स्ट्रा एक्सचेंज जो होता है इस पेयरिंग अप को ब्रेक करके, इस पेयरिंग अप से जो लोअर सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जितना लोअर होएगा उससे ज्यादा लोअरिंग अप ये एक 5 एक्सचेंज एनर्जीज हमको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है कि देयर कम्स अ विजुअल इफेक्ट, मतलब हम लोगों को विजुअल या फिजिकल इफेक्ट ये देखने के लिए मिलता है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग वन अनफिल्ड डी ऑर्बिटल, बेसिकली हमारा एस ऑर्बिटल जो होता है वो अनपेयर्ड हो करके हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अज्यूम करने की कोशिश करता है। ये भी इस सिनारियो में हाफ फिल्ड हो गया और ये भी इस सिनारियो में, मतलब ये वाले सिनारियो में डी वाला पूरा हाफ फिल्ड हो गया और एस वाला भी हाफ फिल्ड हो गया। दिस कॉन्फ़िगरेशन हैज बिकम मोर स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी के पीछे अगेन दो रीजंस होते हैं, एक पहला सिमेट्रिसिटी और दूसरा ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी। ये दोनों मिल करके इस पेयरिंग अप को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये पेयर्ड अप ब्रेक हो करके ये इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रियलिटी में करता है हर जगह पे। नॉट ओनली दिस, अनदर सिनारियो जैसे 3D में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो 4s में। ऐसे सिनारियो में भी पेयरिंग अप जो होती है 4s की, दैट ब्रेक्स डाउन। ठीक है, और वो कैसे अरेंज कर दे
होता है, हो जाता है, it tries to arrange itself in this manner. अब यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी टोटल कितने हैं और यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी टोटल कितने हैं, ये हम लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जीज के काउंट तो ज्यादा डिफर नहीं करेंगे, बट आई थिंक एक्सचेंज एनर्जी तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। द इलेक्ट्रॉन इज ओनली कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ पर 20 होएगा और यहाँ पर भी 15 प्लस 10 25 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पर भी 25 ही रहेगा। एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पर लगभग सेम रहेगा, बट सिमेट्रिसिटी यहाँ पर बेटर हो जाती है, सिमेट्रिसिटी यहाँ पर बेटर हो जाती है। एंड सिमेट्रिसिटी बेटर हो जाती है का मतलब ये है कि दिस बड़ा वाला ऑर्बिटल बिकम्स सिमेट्रिकली फिल्ड, दिस बड़ा ऑर्बिटल बिकम्स सिमेट्रिकली 3D बिकम्स सिमेट्रिकली फिल्ड, और ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड है, ठीक है। जबकि इस सिनारियो में दिस इज नॉट सिमेट्रिकली फिल्ड, क्योंकि ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट है, एक वैकेंसी यहाँ पर है, और ये सिमेट्रिकली फिल्ड है, ठीक है। नाउ इस सिनारियो में दोनों सिमेट्रिकली फिल्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना भी एस ऑर्बिटल में इट डज नॉट इम्पैक्ट सिमेट्रिसिटी, दो पर भी वो सिमेट्रिक रहता है, एक पर भी सिमेट्रिक रहता है। Am I making sense? Yes, sir. यस सर। ठीक है। सो इस सिनारियो में क्या है, एक ऑर्बिटल मेरा बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है और एक सिर्फ सिमेट्रिकली फिल्ड है, यहाँ पर दोनों ऑर्बिटल्स मेरे सिमेट्रिकली फिल्ड हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है दैट बिकम्स मोर कंपेयर टू दिस अरेंजमेंट, एंड देयरफॉर it is said that half filled orbitals, half filled and fully filled orbitals, fully filled orbitals are exceptionally stable, ठीक है। and this is a key point which we have to account for whenever, जैसे देखिए डी में 8 इलेक्ट्रॉन जब तक आएंगे ना, 8 इलेक्ट्रॉन तक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे अभी आगे, जस्ट तुरंत बाद में। 8 इलेक्ट्रॉन तक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, 9वां इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड होगा, ये s जो होता है अनपेयर्ड होकर के इसको 10 कर लेता है और ये s1 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और ये हर बार होएगा। सिमिलरली जब तक 3 इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप रहते हैं, जब तक 3 इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मोमेंट 4th इलेक्ट्रॉन्स कम, ठीक है, 4th इलेक्ट्रॉन के आने के साथ ही ये जो है एस ऑर्बिटल, ये अनपेयर्ड होकर के यहाँ पर आ जाता है, इसको फिल करता है, एंड देन पेयरिंग अप स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। बात समझ में आ रही है? सो ये हर जब 3 से 4 पर मूव करेगा डी में, या 8 से 9 पर 9वां इलेक्ट्रॉन जब एंटर होगा डी ऑर्बिटल में, this type of process is going to take place. Am I making sense? अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली देख लेते हैं, एंड देन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग फ्यू मोर थिंग्स। ओके, एनर्जी वैल्यू के हिसाब से चीजों को अगर मैं अरेंज करता हूं, तो सबसे पहले मेरा 1s रहेगा,
राइट, द लोएस्ट एनर्जी। उसके बाद कौन सा रहेगा, 2s। फिर क्या आएगा, 2p 2p के 3 ऑर्बिटल्स। फिर क्या आएगा, 3s 3s। हाँ, 3d आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 3p 3p। एक सेकेंड रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ। हेलो। हाँ, 3s के बाद 3p रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, 4s 4s रहेगा। फिर क्या रहेगा, 3d 3d रहेगा। ठीक है, फिर क्या रहेगा, 4p फिर रहेगा 4p। फिर क्या रहेगा, 5s इसके बाद 4d 4d। फिर 5p उसके बाद ठीक है। और ये सेम अरेंजमेंट हमको यहाँ से भी मिलता अगर हम इसको ऐसे लिखते तो, ये यही वाला ऑर्डर यहाँ पे मिलता। तो इसको ऐसे ना लिख करके मैंने ठीक है, चलेगा। अभी देखो, जब पहला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होएगा वो कहाँ पे रहेगा, वो 1s में ही रहेगा। खत्म हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो। हीलियम का इलेक्ट्रॉन, हीलियम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा हमको, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में पेयर्ड अप होके रहेगा। ठीक है। और हीलियम के बाद होता है हमारा लिथियम। लिथियम में तीसरा इलेक्ट्रॉन जो आता है दैट कम्स ऑन दिस प्लेस। पहले दो यहाँ पर फिल होते हैं, तीसरा वाला यहाँ आता है। लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन 2s में पेयरिंग अप क्रिएट करता है। ठीक है। तो बेरिलियम तक का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, ये 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 और ये। ठीक है, 1s2 2s2, दिस इज फॉर बेरिलियम। ठीक है। बेरिलियम के बाद आता है हमारा बोरॉन। बोरॉन में 5th इलेक्ट्रॉन आता है। 5th इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू फॉल इनटू दिस। 6th इलेक्ट्रॉन कार्बन का विल कम इनटू दिस। 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन विल कम इनटू दिस। ठीक है। देन पेयरिंग अप स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 8th इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। फ्लोरीन के 9th इलेक्ट्रॉन के बाद नियॉन का 10th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ रही है। yes sir Yes. तो नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, इट इज गोइंग टू बी 1s2 2s2 p3। ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 p4। कार्बन के लिए 1s2 2s2 p2। ठीक है। और फ्लोरीन के लिए बाकी सारी चीजें सेम, p5। नियॉन के लिए बाकी सारी चीजें सेम। ठीक है, p6 2s2 p6 1s2। नियॉन के बाद हमारा होता है क्या, सोडियम। राइट, सोडियम में 3s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। सोडियम के बाद होता है मैग्नीशियम,
3s completely filled. मैग्नीशियम के बाद होता है एल्यूमिनियम, p में पहला इलेक्ट्रॉन जाता है. एल्यूमिनियम के बाद होता है सिलिकॉन, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता है. सिलिकॉन के बाद होता है सल्फर, सल्फर में ये तीसरा सॉरी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जाता है. फॉस्फोरस के बाद होता है सल्फर, ये चौथा इलेक्ट्रॉन आता है. सल्फर के बाद क्लोरीन, पांचवा इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन के बाद आर्गन, अरे हाँ नियॉन के बाद आर्गन, तो आर्गन पे ये छठा इलेक्ट्रॉन आकर के 20 का कॉन्फ़िगरेशन लेता है. ठीक है, सॉरी 18 का कॉन्फ़िगरेशन लेता है Ar. तो 1s2, 2s2p6, फिर 3s2p6. ठीक है, आर्गन के बाद 18 के बाद जब 19th इलेक्ट्रॉन आता है दैट इज गोइंग टू एंटर हियर. पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन 4s में 19th इलेक्ट्रॉन. पोटेशियम के बाद होता क्या है कैल्शियम, कैल्शियम का 20th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है. 20th इलेक्ट्रॉन होने के बाद अब हम लोग पहली बार डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करते हैं. स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज. क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज. 21, 22, 23, 24, 25. ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. 27, 28, 29, 30. ठीक है, इज इट ओके? सो अब 21st इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट इज गोइंग टू कम हियर. 22nd इलेक्ट्रॉन विल कम हियर. टिटेनियम का 22nd विल कम हियर. वैनेडियम का 23rd विल कम हियर. द मोमेंट क्रोमियम का 24th इलेक्ट्रॉन की बारी आती है तो ये तो खुद यहाँ पर आता ही है, बट साथ में और क्या करता है, 4s वाले को प्रमोट करके यहाँ पर लेते आता है. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्रोमियम का और वैनेडियम का और क्रोमियम का. वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे हम लोग, आर्गन वाला कॉन्फ़िगरेशन तो एज इट इज, यहाँ तक वाला कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा, तो इसको जनरली AR से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन वाला ही कॉन्फ़िगरेशन. चेंजेस क्या रहेंगे, एक्स्ट्रा क्या रहेगा, तो 4s में 2 रहेगा और 3D में p रहेगा. 3D में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. ठीक है, इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या जनरली लिखने के टाइम में 4s को हम लोग बाहर लिखते हैं, तो वी कैन राइट सिंपली एज 3d3 4s2. But the moment we start writing for it, we write it as AR and इसको कर लेते हैं 3d5 4s1. बात समझ में आई? और ये होता मतलब हम लोग कर लेते हैं ऐसा नहीं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. ये एक्चुअली ऑब्जर्व किया गया है थ्रू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. ठीक है, ये मैंने बोल दिया या आपने किसी ने सोच लिया, ये ऐसा वाला हिसाब किताब नहीं है. ये क्या है, इट हैज बीन ऑब्जर्व प्रैक्टिकली थ्रू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दैट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आर लाइक दिस इन क्रोमियम. मेकिंग सेंस? Yes, sir. ठीक है, तो और इसके पीछे रीजन क्या है, दो रीजंस. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल कंपेयर टू नॉन फुल्ली फिल्ड और नॉन दिस थिंग नॉन दैट इज पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स. ठीक है, और उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, पहली सिमेट्रिसिटी और दूसरी एक्सेस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी. राइट, am I making sense? अब 24 के बाद 25वां इलेक्ट्रॉन जो होगा, डी पूरा फिल हो गया तो फिर से वो एस के ऊपर जाएगा, डबल होएगा और फिर इसकी पेयरिंग अप. तो Mn वाले में क्या होएगा, इट इज गोइंग टू बी Mn का कॉन्फ़िगरेशन में, एक सेकंड सर वो आर्गन वाला वापस से बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था.
आर्गन वाला वापस से बताऊं? अच्छा देखो, कहाँ तक तुमने सुना था? ठीक है, स्कैंडियम का 21st इलेक्ट्रॉन विल कम इनटू 4s1, 22nd इलेक्ट्रॉन ऑफ टिटेनियम विल कम एंड पेयर अप विद 4s1 ऑफ स्कैंडियम, तो 22 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 21वां यहाँ पर आएगा और 22वां यहाँ पर आएगा। वैनेडियम की जब बारी आती है, अरे सॉरी, स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम नहीं, पोटेशियम, 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम विल कम हियर, 20th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम विल कम हियर। ये पोटेशियम और कैल्शियम के हैं। पोटेशियम का होता है 19, जो कि इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, K इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली आर्गन रहेगा और फिर उसके बाद 4s1 रहता है। कैल्शियम के लिए होता है आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन Ar एंड देन 4s2, पेयरिंग अप हो जाती है। उसके बाद स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम चालू होते हैं। तो स्कैंडियम का 21 जो होता है 3D में 1 होता है, टिटेनियम में 3D में 2 होता है, वैनेडियम में 3D में 3 होता है। उसके बाद मैंने बोला द मोमेंट 24th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल, डी में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है, दिस इज नॉट प्रेफर्ड। ठीक है, वाई? पिछले पेज पर मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि इस सिनारियो में हमारी एक्सचेंज एनर्जी 10 की रहती है और इसमें टोटल एक्सचेंज 15 हो जाते हैं, यानी एक्सचेंज एनर्जी हमारी हेविली इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ living in this particular configuration, it prefers to be in this particular configuration। ठीक है, और it happens to be in that configuration, जिसकी वजह से ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर के यहाँ पर आ जाता है और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेड ऑफ 3D4 4s2 होने के, इट बिकम्स 3D5 एंड 4s1। ठीक है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 रहने के बजाय यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 हो जाता है। यहाँ पर 5 होने से ये हाफ फिल्ड हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, और ये 1 है, हाफ फिल्ड है, तो ये भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, दोनों सिमेट्रिकल हो गए तो स्टेबिलिटी हमारे सिस्टम की बढ़ जाती है कंपेयर टू द अदर सिनारियो, जहां पर सिर्फ ये फुल्ली फिल्ड है और ये पार्शियली फिल्ड है, ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, ये किसी और स्टेट में पार्शियली फिल्ड है। अगर इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर ही अगर हम रखते हैं तो ये वाला फुल्ली फिल्ड है, बट ये वाला ना तो पार्शियली फिल्ड, ना तो फुल्ली फिल्ड है, ना ही हाफ फिल्ड है। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, सिर्फ इसके अंदर रहेगी। अभी इसको अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमने प्रोमोट करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो 4s पार्शियली फिल्ड हो गया, सॉरी हाफ फिल्ड हो गया, एंड 3D भी हाफ फिल्ड हो गया। दोनों हाफ फिल्ड हो गए तो दोनों ज्यादा स्टेबल हो गए, एक्सेप्शनली स्टेबल हो गए। ठीक है, तो दोनों की एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी जो है, दैट लीड्स टू some extra stability to the atom, and that becomes like more stable, and therefore the configuration exists in this form rather than 3D4 and 4s2। ये वाला गलत होता है, ये वाला सही कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आप लोग के जिम में कुछ कुछ काम रहेगा। काम ये रहेगा, अगर अभी तक एनसीईआरटी नहीं है आप लोगों के पास तो कोई बात नहीं है, मैं अभी आप लोगों को ये भेजता हूँ, क्या बोलते हैं, लिंक। ठीक है, डाउनलोड करके लेक्चर खत्म होने के बाद मैं उसको भेज दूंगा, और उसमें आप लोगों को मिलेगा ये एनसीईआरटी में सारे एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जहाँ पे खत्म हो रहा है चैप्टर, उसमें 1 या 2 पेज पहले, आई हैव टू चेक, एक सेकेंड, आर गोइंग टू रिपेल वीकली, रिपेल करेगा बट वीकली रिपेल,
इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको रखेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, ये वीकली रिपेल करेगा, इसीलिए इसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। और क्यों रिपेल करता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं इसके खुद ही। अब ये पेयरिंग अब कैसे रिपल्सन में कन्वर्ट होता है, ये मैं आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट जब पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा। तब तक आप लोग काफी सारी चीजें सीख चुके होंगे, सो इट विल बी इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू गाइस, ठीक है। अभी पढ़ाने जाऊंगा प्रॉब्लम होएगी। अभी सिर्फ ये ध्यान में रखो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स या एलिमेंट्स आर दोज इन विच वी हैव ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, ठीक है। एंड दिस लीड्स टू weak repulsion in magnetic field. Whenever we put such material or element or atom in magnetic field, it repels weakly, ठीक है। किसी भी ओरिएंटेशन में रखोगे वो रिपेल ही करेगा, बट बहुत स्ट्रांगली रिपेल नहीं करेगा, वीकली रिपेल करेगा, ठीक है। अनपेयर्ड जब रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट रहते हैं तो वी कॉल इट पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन के बाद इफ यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वी कॉल इट पैरामैग्नेटिक एलिमेंट और एटम, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक का नेचर ये होता है कि दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड, दे आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरे तीसरे जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। फेरोमैग्नेटिक का एक्चुअली अनपेयर्ड से लेना देना होता है, बट उसमें कुछ और भी चीज होती है। अगेन ये भी चीज मैं डिस्कस करूंगा। फेरोमैग्नेटिक जो है वर्ड, सर ये एक बार वापस से बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैग्नेटिक एलिमेंट और एटम्स, ठीक है। एक्चुअली ये एटम्स नहीं होते, ये बल्क लेवल पर फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है ना, ये बल्क लेवल पर होता है, ये एटम के लेवल पर नहीं होता है। एटम के लेवल पर यही दो बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। या तो आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होंगे सारे, अगर पेयर्ड अप होंगे तो यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स, एंड इट्स नेचर इज गोइंग टू बी इट विल वीकली रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो you are going to be called as paramagnetic element or atom, and your natural behavior will be to get attracted in magnetic field, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो आप उसमें अट्रैक्ट हो जाओगे। इज इट ओके? सर एक बार वापस से बताओ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे तो यही बताया था Yes. जब तुम डिस्कनेक्ट हुए थे। ओके सर। रिफ्लेक्ट, सॉरी, spin angular momentum of unpaired electrons of an atom in totality reflects itself in form of magnetic moment of that atom, ठीक है। so spin angular momentum of unpaired electrons of spin angular momentum of unpaired electrons of an of a paramagnetic atom reflects in form of magnetic
ठीक है। और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, ये डायरेक्टली शो करता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एटम को रिफ्लेक्ट करता है, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जब आप पढ़ोगे लास्ट में 12th के, तो यू विल सी दैट यू विल हैव टू डेराइव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द मैग्नेटिक मोमेंट। वो चीज मैं भी अभी बता रहा हूँ, लेकिन उस फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ जो आपको 12th में पढ़ना है। हम अपने काम की चीज जो होती है उसको थोड़ा सा छोटा करके एंड जस्ट यहाँ पर बता लेते हैं। वो हमें कुछ चीजों में हेल्प करता है। ठीक है, किन चीजों में हेल्प करेगा उसके बेसिस पर क्वेश्चन एक आध दो करोगे तो वी विल गेट एन आइडिया। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग में इसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा एंड देन देयर यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट। जैसे आयरन 26, तो आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? यहाँ पर कितने हैं? ये हुए 24, 25वां इलेक्ट्रॉन, 26वां इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड कितने हैं? 4 4। Fe2 अगर रहता है, Fe2+, ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, एस वाले। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बटेंगे? 4। और Fe3+ में एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये पेयर्ड अप वाला निकल जाता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचते हैं 5। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं 5। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसमें ज्यादा रहेगा? Fe2 वाले सिस्टम में या Fe3 वाले सिस्टम में? ऑब्वियसली Fe3 वाले सिस्टम में, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। बात समझ में आ रही है? सर सिर्फ Yes, डी में के sir. 4 में के दोनों के मिला के? क्या क्या? सर सिर्फ डी में के 4, मतलब डी में भी के 4 में भी? अरे Fe2+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे हैं और Fe3 में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसमें ज्यादा रहेगा या मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा रहेगा? जिसमें 4 है या जिसमें 5 है? ये हम लोग को अभी पता चलेगा, और दोनों में कितना कितना रहेगा ये भी हमको पता चलेगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो कंपाउंड जब फॉर्म करेंगे तो एक ये वाला जो कंपाउंड फॉर्म करेगा ये FeCl2 फॉर्म करेगा और ये FeCl3 फॉर्म करेगा। ठीक है, रहेगा दोनों आयरन का ही आयन, बट इनका फॉर्म डिफरेंट होएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएंगी और आपको कुछ चीजें डिड्यूस करने के लिए बोला जाएगा जिसमें इस मैग्नेटिक मोमेंट का यूज होगा। ये होंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। काफी टाइम आपको बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछ ली जाएंगी। एनीवे, क्या पूछा जाएगा उसको सॉल्व करते टाइम मैं बताऊंगा। अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो सुनो। वो इन्फॉर्मेशन का पता होना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। एप्लीकेशन मैं एनीवे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सपोज वी हैव n electrons which are unpaired, or number of unpaired electrons is equal to n। तो टोटल स्पिन्स कितने हो जाएंगे? हाउ मेनी स्पिन्स विल बी अवेलेबल विथ अस? टोटल स्पिन्स विल बी इक्वल टू, सबका स्पिन हाफ 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 होगा तो टोटल स्पिन n/2 हो जाएगा हमारा, isn't it? ठीक है, यस सर। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, that is simply defined as root under 4s into s plus 1। ठीक है, and the unit is Bohr magneton। ठीक है, और Bohr magneton जो होता है, this bm 1 bm is equal to
9.27 into 10 to the power minus 24 joule per Tesla. ठीक है, इस चीज को फर्दर मॉडिफाई करेंगे, इसके बदले n/2 अगर हम प्लेस करते हैं तो इट विल बिकम व्हाट, यहाँ पर n/2 और यहाँ पर भी n/2 रखेंगे तो दिस विल सिंपली बिकम n into n plus 2 bm. ठीक है, सो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा किसी भी एटम का वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 2 का रूट अंडर इंटू bm. This much Bohr magneton magnetic moment will be associated with each atom having these many unpaired electrons. Is it okay? I know. See, I'm just saying if the number of unpaired electrons is n, the total possible spins will be n/2. सारे इलेक्ट्रॉन का हाफ 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 आएगा तो it will become n/2, right? स्पिन एनीवे हाफ हाफ ही Yes, रहेगा. sir. तो टोटल मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है दैट इज सिंपली गिवन बाय दिस फॉर्मूला 4 into s plus 1. ठीक है, 4 into s बोल लो या 2s into 2s plus 1 बोल लो, सॉरी 2s plus 2. इसको या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2s and 2s plus 2 या फिर रूट अंडर 4s into s plus 1. एक्चुअल ये होता है. ठीक है, और n/2 अगर s के बदले में डाल देते हैं तो इट विल बिकम n into n plus 2. And this is the magnetic moment of any atom because of its unpaired electrons. ठीक है, तो जैसे अब अगर हम आयरन की बात करें, आयरन 2+ Fe2+ की, तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 4 into 6 24 √24 आएगा. ठीक है, Fe2+ के लिए. Fe3+ के लिए क्या आएगा, रूट अंडर 5 + 735. Are we getting this point? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. सर वो BM क्या लिखा है? Bohr magneton, that's unit of magnetic moment. Bm is Bohr's magneton. ठीक है, and its value is this much. सर वो जूल पर क्या लिखा है? टाइम है? Per Tesla. ओके सर. ठीक है, सर Fe2+ में n की वैल्यू क्या लिखी है? Fe2+ में n की वैल्यू क्या रहेगी, 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, ऊपर देखा था हम लोगों ने ना, और Yes, Fe3+ में 5 होते हैं. Yes, sir. ठीक है, ओके. Yes, sir. अभी एक दो छोटी चीजें हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा ये नोट डाउन कर लेते हैं, एंड देन द लेक्चर विल गेट कंक्लूडेड. आई मीन एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर्मली खत्म हो जाएगा. रुक जाओ, पहली चीज जो है वो ये है, कैन वी गो बैक टू लाइक श्रोडिंजर्स इक्वेशंस वाली चीज जो है उसके अंदर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है. आई हैव मिस्ड आउट a small constant in that.
समवेयर यहीं पे होना चाहिए. So I will just add it up. एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं होती है, बट क्या जरूरत होती है ये भी मैं बता देता हूँ. जनरल फॉर्म जो मैंने दिया है वो सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. ये एटम्स के स्पेसिफिक होता है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, तो उस केस में ये वाली वैल्यू आ जाती है. जनरल के लिए वो ट्रू है. हाँ. हाँ बिल्कुल, ग्रुप्स में सारे एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मोमेंट डेफिनेटली सेम रहेगा. अगर किसी का जीरो है तो मतलब एक एलिमेंट का ग्रुप में जीरो है तो बाकियों का भी जीरो ही रहेगा. एक का जितना है उतना ही दूसरे तीसरे का भी रहेगा. नो डाउट अबाउट इट. हाँ देखो, ये वाला जनरल फॉर्म जो लिखवाया था ना, ये जनरल फॉर्म इज परफेक्टली फाइन. और हाइड्रोजन एटम के लिए जब हम बात करते हैं, एक्चुअली यहाँ पर जो मिस हुआ है मेरे से वो ये हुआ है, आई शुड हैव गिवन अ कांस्टेंट ओवर हियर. जनरल फॉर्म में भी एक कांस्टेंट वैल्यू, मे बी वी कैन कॉल इट कैपिटल के, which has to be there. हाँ तो ले लो. A constant k has to be there. The actual form happens to be like, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो it takes up this form. ठीक है, एक सेकंड. My E psi is equal to minus h square by 8 pi square m, ठीक है, into del square plus v into psi. ठीक है, ये होता है हमारा प्रॉपर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम. और किसी और एटम के लिए अगर हमको देखना है तो थिंग दिस वाला थिंग विल गेट रिप्लेस्ड बाय सम और द अदर टर्म. इसी को मैं के बोल रहा था, ये लिखना मैं भूल गया था. हाइड्रोजन के लिए इस के की वैल्यू ये रहेगी, किसी और एटम के लिए ये वैल्यू थोड़ी डिफरेंट रहेगी. ठीक है, एंड दिस थिंग इज टुगेदर नोन एज, ये पूरी चीज को हैमिल्टोनियन बोलते हैं. हैमिल्टोनियन वो मैंने लिखवाया हुआ है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. और अच्छा, ये इंट्रोड्यूस करने का के की वैल्यू रीजन क्या होता है? देयर इज, इसको एक्चुअली बोलते हैं पैरामीटराइजेशन टर्म. पैरामीटराइजेशन टर्म मतलब बेसिकली साई फंक्शन जो आता है हमारा, साई फंक्शन का स्क्वायर इनटू डीवी अगर करेंगे तो ये जो होगा दिस इज गोइंग, इसका इंटीग्रल जो होगा दैट इज गोइंग टू गिव अस द ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और इंटायर स्पेस ऑफ एटम, ऑल स्पेस इनसाइड द एटम के ऊपर अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इट शुड बिकम इक्वल टू 1. ठीक है, अब इसके बगैर इसको के लेकर के एक्चुअली हम पूरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं और फिर साई को डीवी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और उसको 1 से इक्वेट करते हैं, एंड फ्रॉम देयर वी गेट द वैल्यू ऑफ के. ठीक है, पहले सारे इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, साई की वैल्यू निकाली के टर्म्स में,
फिर उसको यहाँ पर पुट करते हैं हम और उसको इंटीग्रेट करते हैं एंड वी इक्वेट इट टू 1 एंड बैक फिर हमको k की वैल्यू मिलती है एंड वो वैल्यू ये होती है, इसको हमने यहाँ पर रख लिया। तो बेसिकली ये 1 लाने के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूरे स्पेस में फाइंड होने के इलेक्ट्रॉन की 1 ही होनी चाहिए 100%, वहां से ये पैरामीटर डेवलप होकर के आता है, देयरफॉर इट इज नोन एज पैरामीटराइजेशन कांस्टेंट। ठीक है ना। और एक्चुअली मिस मैंने यहाँ पर इस k को किया, ये वाली वैल्यू इज स्पेसिफिक टू हाइड्रोजन एटम। आई एम अगेन सेइंग दिस इज स्पेसिफिक टू हाइड्रोजन एटम, नॉट फॉर ऑल द एटम्स। बाकी के एटम्स के लिए, हाइड्रोजन एटम एंड यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, अदर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बाकियों के लिए इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। ओके, दूसरी चीज यहाँ पर जस्ट एक चीज और, आखिरी चीज जो थोड़ी सी छूट गई थी, जब मैं ऑर्बिटल्स वगैरह के बारे में बता रहा था तो लोब्स वगैरह सारी चीजें बताई थी मैंने, अजीमुथल क्वांटम नंबर सेप के टाइम पे। और वहां पे जस्ट एक चीज बताना मैं भूल गया था आप लोगों को, whenever I am talking about p orbital, ठीक है, s ऑर्बिटल के केस में क्या होता है कि हमारा जो वेव होता है, वेव फंक्शन, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेव का एम्पलीट्यूड जो होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, या डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमने देखा है, साई का रेडियल फंक्शन जो था वो ऐसे ही था ना, और ये हमेशा ऊपर था एक्स एक्सिस के। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होने की वजह से इसको जनरली हम लोग पॉजिटिव साइन दे करके रखते हैं एस ऑर्बिटल को। पी ऑर्बिटल के केस में क्या होता है, 5 मिनट बस ये बता के, या फिर एक सेकंड हम निकल। पी ऑर्बिटल में क्या होता है, पी ऑर्बिटल में वी हैव one thing is up and another thing is down and then it goes like this, right? एक प्लस लॉब एक माइनस लॉब, यहाँ पर भी सेम चीज होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। नाउ माइनस कैन बी हियर, प्लस कैन बी हियर, दे कैन बी इंटरचेंज, देयर इज नो इशू। राइट, एक सेकंड होल्ड करो थोड़ा। Are we get are we getting this point? Are we getting this point? हेलो हेलो, यस सर। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों को समझ में आ रही है ये बात, प्लस एंड माइनस वाली, या कोई इशू है? इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ मैं, बस ये बता रहा हूँ, सारी चीजें बताई हुई हैं मेरी, बस मैं ये बता रहा हूँ कि लोब्स कहीं कहीं पर अगर कभी आप देखते हो ना प्लस माइनस डला हुआ, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड इंटायरली। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आप जानते नहीं हो, यू नो दैट, एंड उसका मतलब क्या है, वो यही मतलब होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है, ये जो वेव्स हमारे हैं अगर ऊपर जाते हैं एक्स एक्सिस के तो वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नीचे आते हैं तो वी कॉल डिस्प्लेसमेंट टू बी नेगेटिव। ठीक है, और अरे अरे यार, ले, जल्दी
38. This is 39. 38. Okay, it is here 37. Okay, नंबरिंग अलग कर दिया है. हाँ, सिंगल लोब एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव रहता है. व्हेन वी कम टू डी ऑर्बिटल, इसमें होता है ऐसा है कि एक लोब जो पॉजिटिव होता है उसका दोनों साइड पॉजिटिव होता है और दूसरा वाला जो नेगेटिव होता है उसका दोनों साइड नेगेटिव होता है. ठीक है. इस वाले केस में अगर हमको कहीं पर ऐसा डिपिक्शन मिल जाता है जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, दिस इज रॉन्ग डिपिक्शन. इसमें डिपिक्शन हमेशा इस तरीके का रहेगा. वन ऑफ द lobes इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द अपर हाफ एंड द अदर वन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द लोअर हाफ, द लोअर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. यहाँ पर one half is indicating the upper displacement, another half is representing the lower displacement. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? इसकी जरूरत क्यों और कहाँ पड़ेगी? when I'll be dealing into chemical bonding ना, we will see that ये प्लस वाला इसके इस प्लस साइड के साथ इंटरेक्ट करता है, प्लस वाला माइनस के साथ इंटरेक्ट कभी नहीं करेगा. ऐसे दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल हैं तो प्लस वाला हमेशा प्लस वाले के साथ ओवरलैप करेगा, माइनस वाले के साथ ओवरलैप नहीं करेगा. ठीक है. सिमिलरली इसका प्लस इसके प्लस के साथ ओवरलैप करेगा, माइनस के साथ ओवरलैप नहीं करेगा. माइनस वाला माइनस के साथ ओवरलैप करेगा, प्लस के साथ ओवरलैप नहीं करेगा. यानी ये माइनस और ये प्लस कभी ओवरलैप नहीं करेंगे. बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की पेयरिंग अप में हमारा हेल्प करता है ये चीज, ये इंफॉर्मेशन. इसीलिए ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी बता दी है. गेटिंग द पॉइंट? हेलो, ये बात समझ में आई हम लोगों को? Yes, sir. ठीक है. These plus minus signs are just related to the displacement from midline for the electron matter wave. ठीक है. और आखिरी चीज जो थी आपकी ध्यानेश, व्हाट इज एंटी प्रोटॉन एंड ऑल ना. देखो उसमें ये होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉजिट्रॉन. और ये सारे पार्टिकल जो होते हैं ना, तीन मेन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़ के बाकी छोटे वाले जितने होते हैं ना, these subatomic particles are all what should I say, they are part of an unstable system. Unstable system मतलब न्यूक्लियर इमिशंस जब हो रहा होता है ना, नहीं शाम को क्यों रहेगा, अभी रहेगा, अभी होकर के खत्म हो जाएगा. और वो भी मैं अभी 5 मिनट में बताता हूँ तुम लोगों को, मैसेज करके बताऊंगा ये लेक्चर खत्म होने के बाद. आई विल चेक इफ थिंग्स आर फाइन, तो अभी लूंगा, नहीं तो फिर शाम को लूंगा. ठीक है. वेट फॉर सम टाइम. पॉजिट्रॉन जो होता है, पॉजिट्रॉन, दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इसका चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है और मास जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है. इसीलिए इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव. ठीक है. और मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन. इसके अलावा दूसरा जो है वो होता है पॉजिट्रॉन के बाद न्यूट्रिनो. न्यूट्रिनो. ठीक है. न्यूट्रिनो जो होता है, चार्ज जीरो होता है, मास भी ऑलमोस्ट जीरो होता है. ठीक है. ऑलमोस्ट जीरो. दिस इज एक्चुअली हाई एनर्जी रेडिएशन. हाई एनर्जी रेडिएशन. ठीक है.
गामा रेडिएशन की तरह न्यूट्रिनो भी रेडिएशंस होता है जिसका चार्ज और मास ऑलमोस्ट जीरो जीरो रहता है। मास ऑलमोस्ट जीरो रहता है, चार्ज परफेक्ट जीरो रहता है। इज इट ओके? न्यूट्रिनो Yes, sir. न्यूट्रिनो के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक देयर इज एंटी प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन भी है, इसकी भी एग्जिस्टेंस देखी गई है। एंड देन यू हैव एंटी न्यूट्रॉन, इसकी भी एग्जिस्टेंस देखी गई है। एंटी न्यूट्रॉन, अब एंटी प्रोटॉन का कैरेक्टर क्या होता है, तो इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो माइनस इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रहेगा। प्रोटॉन के ऊपर प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और इसके ऊपर माइनस इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज रहेगा, माइनस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मास जो रहेगा वो प्रोटॉन के मास के बराबर, एमपी के बराबर रहेगा। एंटी न्यूट्रॉन में क्या है, चार्ज न्यूट्रॉन की तरह ही जीरो रहेगा, मास न्यूट्रॉन की तरह ही होगा, ठीक है, लेकिन इसका स्पिन जो होता है, स्पिन इज ऑपोजिट 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 टू न्यूट्रॉन। ऑपोजिट टू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये एंटी न्यूट्रॉन हो गया, एंटी प्रोटॉन हो गया। इसके बाद मेसॉन्स होते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेसॉन्स। बट ये सारे के सारे जो है ना, दे ऑल आर पार्ट ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशन, दे डोंट हैव टू एक्टिवली डू एनीथिंग विद दिस, क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मेसॉन्स में म्यू मेसॉन होता है, पाई मेसॉन होता है, एंड एक और होता है, नाम भूल रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, वन सेकेंड वन सेकेंड। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेसॉन्स में म्यू, पाई एंड के मेसॉन, ठीक है। तो म्यू मेसॉन कैन either have plus charge or minus charge. Pi meson can have plus charge, minus charge, or zero charge. K meson can also have plus charge, minus charge, or zero charge. Now mass K of क्या है? meson का नाम है ये पार्टिकल्स होते हैं। Okay, म्यू sir. मेसॉन, के म्यू मेसॉन, पाई मेसॉन एंड के मेसॉन, ठीक है। So there are total 8 types of particles. Uh, the mass of mu meson is around 286 mass of electron, electronic mass. Me is mass of electron. Pi meson is slightly lighter, it is 270 mass of electrons. And K mesons are much heavier, they are around 970 mass of electrons, ठीक है। यानी दो के मेसॉन्स मिल करके लगभग एक प्रोटॉन बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है उसका 1837 टाइम्स मास होता है प्रोटॉन का, ठीक है। mp इज इक्वल टू 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से लगभग ट्वाइस के मेसॉन will make one proton approximately. So these are certain particles। अच्छा, न्यूट्रिनो के साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी होता है,
बट उसका और न्यूट्रिनो के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों के पास 0 एनर्जी एंड मास होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 एनर्जी एंड 0 मास। सो दैट इज ऑल अबाउट डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बट ये मोस्टली रेडियो एक्टिविटी में काम ज्यादा आते हैं, अभी के लिए नहीं होते हैं। सर मेरा लेक्चर अभी 10 बजे से है। नहीं, मेरा अब खत्म हो गया। अब तुम लोगों को जो डाउट्स पूछने हैं, दिस इज द फॉर्मल इंफॉर्मेशन विच आई हैव टू इम्पार्ट रिगार्डिंग दिस चैप्टर। अब आप लोगों को इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ कुछ और पूछना है तो यू कैन कीप आस्किंग मी क्वेश्चन। ओके सर। मेरे तरफ से इंफॉर्मेशन सारी कंप्लीट हो गई। दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय एंड। ठीक है। ओके सर।